मैम यूट्यूब पे टेस्ट तो नहीं आएंगे ना किसी के या? Beforehand, I'm going to open the screen for that. I'll be sharing it away. Um, yeah. Since we all know that there are three kind of uh, three parts in a speaking module. The first part is introduction, the introductory questions. The second part is cue card, in which you're given a set of questions. आपको एक set of questions दिए जाते हैं. Means there is one main question and a few questions under it, which you need to combine, think about them, make notes of them, and then speak it for continuous 2 hours. Okay, 2 minutes, sorry. Speak it for 2 minutes continuously. Then there is a follow up session. Means जो आपका क्यू कार्ड आपसे पूछा गया था, immediately after that there is a set of another questions जो आपके क्यू कार्ड से मिलते जुलते थे या उसी में से आपके क्वेश्चंस निकले हुए हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस, जिसमें आपको और डिटेल में बोलना होता है थोड़ा सा. क्लियर? So what I'm going to do is, I first thing that I want to discuss with you people is the introduction and the follow-ups. Okay. We will be having a cue card discussion tomorrow in depth. In the introductory questions, there is a myth that many of us have. बहुत सारे हम में से यही सोचते हैं कि मैम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ना 1 लाइन आंसर देना या 1.5 लाइन का आंसर दो और फिनिश. फॉर इंस्टेंस, if I ask you, Aarti, are you a student or a working person? No, ma'am, I'm not a student and not working also. Mm-hmm. Okay, you're not a Just student. I think you're pursuing your IELTS. yes, ma'am, I'm pursuing. So are not you a student? I have become students before 4 5 days only. Okay, so but we cannot give this answer. Okay, I'll stop the screen share now. Whenever there is a next question, I'll bring it forward to you. So please tell me now, if we are a student or if we are a working, we need to give an answer that does not confuse the person. अब कोई वर्किंग पर्सन है लेकिन वो आइल्स कर रहा है, बहुत सारे बच्चों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि मैम आइल्स कर रहे हैं तो स्टूडेंट हुए ना. नो, सॉरी, यू कैन नॉट से दैट. योर मेन प्रोफेशन इज वर्किंग एंड नॉट अ स्टूडेंट. योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? आर यू स्टूडेंट और अ, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो एंड यू आर स्टडिंग in the meantime, you're a student. If your main time of the day is in working, so you're a working person and not a student. Your part-time work is of that of a student. So whatever your main working is, main occupation is, you need to specify that. Suppose if I talk about myself, I am a working person, in fact working as an administrator. ठीक है, मैं उसमें आइल्स का कोई जिक्र नहीं कर रही. परफेक्ट. तो मैंने आपको ये क्लैरिफाई करने के लिए आरती से क्वेश्चन पूछा है. नाउ इफ दे आस्क मी द नेक्स्ट टॉपिक of a working person, अगर वो पूछ लेते हैं, could you please elaborate about your job? Okay, then I'm going to speak. अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहती तो मैं नहीं लूंगी. बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं मैम वहाँ पे कंपनी का नेम बताना जरूरी है? Not at all necessary, because this is an IELTS examination and not an interview for a job, right? So you can simply say, if I talk about my own experience, as I said, I'm working as an administrator. I would preferably not like to specify, या फिर मैं simply start कर सकती हूँ without naming the institution I work at, comma, अगर हम उस comma को pause से बोलेंगे, I would like to specify I would like to put forth my working. I work as an administrator, in which there is a lot of dealing with the documentation and the paperwork. Moreover, scheduling the time of the employees of my company, the timetable of the employees of my company is my forte. Forte means specialty. Clear? आप अगर GT के candidate हो, your speaking needs to be like this.
It needs to carry vocabulary from time to time. Introduction question के अंदर ही अगर आप academic student हो, if you're aiming above 7, आपको vocabulary के साथ चलना होगा. ठीक है? Suppose now I'm a student. What are your subjects? अगर उसका next question है, what are your subjects? I'm a student and I'm currently pursuing my bachelor's or master's in education or master degree. Okay. What are your subjects? My subjects are, my main course study is HR and marketing. It's a dual MBA, which includes multiple subjects ranging from quantitative data to economics, or even it also includes or inculcates certain aspects of business management. तो मैं inculcates है, business management है, pursuing है, words को साथ साथ मैं involve कर रही हूँ. मैम introduction में, yes बेटे, first impression is the last impression. I always tell you, your introduction is the face of your self. Whatever you, yes, whatever the first impression, आप उसको जो भी आप अपना first impression post कर दोगे उसको, he is going to score you accordingly that. अगर आप उसको पहले ही बता, I'm a student, आप precise बोल रहे हो, तो वो आपके बारे में ये सोच रहा है कि he can't speak more. He cannot speak at length. Understood? He cannot speak at length. तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी. आज मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करूंगी. I'll keep it only a 10 to 12 minute session and we'll be having a good speaking discussion tomorrow completely. राइटिंग कल शॉर्टर रहेगी. कल स्पीकिंग पे हम इतनी वास्ट डिबेट करेंगे, या हो सकता है परसों करें, कल रीडिंग करनी पड़े, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की रीडिंग डिमांड भी है. अगर रीडिंग पे टाइम मिला तो रीडिंग पे, ठीक है. इट विल बी अ मास्टर क्लास ओनली. सो इन स्पीकिंग यू नीड टू इंश्योर दैट योर introduction needs to be elaborative, at least a line and a half added हो उसमें. आपका जो आंसर आप जो दे रहे हो उसमें 1 या 1.5 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करो, जो आपको वोकैबुलरी, ये नहीं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आप उसको बता रहे हो. आपको पता है कि are you a student? Yes, I'm a student and I am pursuing my bachelor in commerce. My subjects are accountancy. आपको पता है कि इतना लेंथ बोलोगे तो वो आगे आपसे पूछेगा. आपका उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है, आपके सब्जेक्ट्स क्या है. जब वो स्टडी का पूछ रहा है तो उसी बारे में पूछेगा आगे. तो आप उसमें लिमिट रखो. I am pursuing my bachelor's in commerce. In fact, I enjoy my course a lot. मैं अपने इस कोर्स को बहुत enjoy करता हूँ. Yeah, I portray a keen interest in pursuing every bit knowledge of this course. मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता हूँ या करती हूँ इस कोर्स की बारीकी से नॉलेज लेने में. आप ऐसी लाइन ऐड करो जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंपैक्ट ना डाले, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलते जुलते बातों का ही आने वाला होता है. बट यू नीड टू बी इलैबोरेटिव. कई बच्चे इस डर में आगे क्वेश्चन नहीं पूरा करते, आंसर नहीं पूरा करते, ज्यादा इलैबोरेट नहीं करते कि मैम अगला क्वेश्चन उसका यही हुआ, अगर मैंने पहले आंसर दे दिया फिर मुझे कहना पड़ेगा एज आई सेड अबव. एज आई सेड अबव बोलूंगा तो मैम वो मुझे सोचेगा कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो बच्चे इस चीज के कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं, इसलिए वो इंट्रोडक्शन में बहुत शॉर्ट बोलते हैं. अगर आप इंट्रोडक्शन थोड़ा बोलोगे तो उसको लगेगा कि ये ना सिर्फ जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना जानता है, इसको सिर्फ इलैबोरेट करना नहीं आता थोड़ा सा भी. जबकि वहां पे जितने भी बच्चे 7, 7.5, 8, 8.5, 9 बैंड लेते हैं, उनका स्कोर सिर्फ फ्लुएंसी और नेचुरल स्पीकिंग की वजह से मिलता है. यू टॉक मोर एज अ नेचुरल स्पीकर. सपोज यू आस्क मी, आई रितिका मैम, व्हाट डिड यू डू yesterday? I am a natural speaker. I'm going to speak very naturally in front of you. Yesterday was a very good day for me, as it was more like a holiday, and I got enough time to spend with my child, especially inculcating in all those activities that he liked to play with me on the other days, which could have not been possible otherwise had it not been a holiday. I did some kite flying with him in the evening hours. But talking about particularly in the morning or in the afternoon hours, I spend most of my time cooking food for my son's favorite dishes, making him eat with my own hands. I serve the food to his mouth. In fact, I also did try to play a lot of games with him, like cricket in the front yard of my house,
which has a garage covering, so there was no sunlight and it was easy for us to play. It was a good day that we spent. It's a natural speaking. जो मैंने किया मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, बिना उसको फॉर्मल उसमें डाला कि एक एक वर्ड को मैं सोच सोच के बोल रही हूँ. Yesterday I did a lot of activities with my child. I thought he would like to play cricket with me, so I played cricket with him. बच्चे ऐसे बोलते हैं सोच सोच के, धीरे धीरे स्ट्रेच करके वर्ड्स को, जहां पे उसको पता लग जाता है कि ये बच्चा एक नेचुरल स्पीकर नहीं है. उनको नेचुरल स्पीकर चाहिए बेटे, जो बच्चा इंग्लिश में नेचुरली बात कर पाए किसी भी चीज के बारे में, मे इट बी एनीथिंग. आर यू गेटिंग माय कंसेप्ट? तो जब आप इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट अगर आप देते हो, आप कहते हो कि आई एम अ स्टूडेंट, योर आंसर इज स्टॉप्ड ओवर हियर. They think the child cannot speak much, is not a natural speaker. उसको डाउट होना शुरू हो जाता है नेचुरल स्पीकर नहीं है. And then if you say I am a student, आप सोचते हो पहले थोड़ा सा आप पॉज ले लेते हो. I am a student and I am doing my education in commerce. आपका चेहरा बता रहा है उसको कि आपको कितना सोचना पड़ रहा है, आपके फेस पे कितनी घबराहट है. इस घबराहट से ही आपके मार्क्स लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं बेटे. गेटिंग माई कंसेप्ट? हिंदी में पूछ लेगा बेटा पढ़दा या लिखदा, पंजाबी च पूछ लेना उन्हें पढ़दा या लिखदा. जी मैम पढ़दा. की पढ़दा? जी मैम अजकल ना बैचलर कॉमर्स करी जाना, ग्रेजुएशन करते हैं. अच्छा वधिया लगदा पढ़ के? हाँ मैम बहुत इंजॉय करदा. वो तो सौखा बोल लेंदे हो. इंग्लिश की प्रॉब्लम हो जाती है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सेम चीज आपने इंग्लिश में फ्लो में बोलनी है. ठीक है. इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी इलैबोरेटिव वन. एंड क्यू कार्ड को एक बार हम स्किप करेंगे. फॉलोअप्स अगर आप बात करोगे, फॉलोअप्स के अंदर आपने आज से एक थंब रूल अप्लाई करना है. 3 पॉइंट या 2 पॉइंट से नीचे आपका आंसर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें फॉलोअप पिक करते हैं, जस्ट सी. Can you describe how people used to communicate 50 years ago? अब मैंने बेटा years की जगह years बोला है. years. अब वो इस years की भी प्रोनाउंसिएशन चेक करेगा. इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, 7.58 9 सीधा. अब आपने years बोला तो वो कहेगा 50 years ago. कान 50 साल नहीं, 50 कानों पहले. छोटी छोटी बारीकियां नोट करते हैं. दे आर हाईली प्रोफेशनल्स. वो 6 बैंड 6.5 बैंड से ऊपर नहीं देते. उनको पता है कि इस बच्चे की प्रोनाउंसिएशन वीक है, इसको मैं 7 दे ही नहीं सकती. क्लियर? कैन यू डिस्क्राइब हाउ पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट 50 years ago? क्लियर? अब अगर मैं इसमें बात करूं years, तो अब आपने एक आंसर दिया. कम्युनिकेशन 50 years ago was very complicated. It was hard for people to communicate with others. They used to look for ways. अभी तक उसको आंसर नहीं मिला. Communication 50 years ago was through telegrams and post, which used to take a large number of days, many number of days. ठीक है. उसमें क्या किया मैंने, उसको पहले आइडिया दिया कि किस चीज से होती थी और उसका इम्पैक्ट दिया. जो आप पहले बात कर रहे थे वो आप इधर उधर की बात कर रहे थे या फिर उसका इम्पैक्ट दे रहे थे सीधा. Communication 50 years ago was very complicated. आप कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो, आप उसमें आंसर नहीं दे रहे कि किस तरीके से होती थी. और उसने पूछा है हाउ वाज डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन 50 years ago. डिस्क्राइब करना है उसको कैसे थी. आपने एक डिस्क्रिप्शन दे दी, कॉम्प्लिकेटेड थी. अगर आप उसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दोगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी. कॉम्प्लिकेटेड कैसे थी? मैंने उसको पहले स्टार्ट किया दैट कॉम्प्लिकेशन. अगर मैं इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड बोल रही हूँ तो बड़ा प्रिसाइजली, communication 50 years ago in the ancient years, or number of half a decade ago, half a century ago. Okay, clear? Half a century ago was quite complicated. My main point. साथ साथ मुझे उसका supporting point start करना है. People used to communicate through telegram or posts.
इट यूज टू टेक और विच यूज टू टेक। अब विच के साथ सेंटेंस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बीच में लंबा सेंटेंस बना रहे हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 6.5 प्लस। अगर आप फुल स्टॉप लगा के अगर इट से सेंटेंस बोल रहे हो तो आपको मिलेंगे 6.5 लास्ट। ठीक है। कम्युनिकेशन 50 years ago was quite complex, full stop। people, अब मैंने मेन पॉइंट फुल स्टॉप के साथ दे दिया और सब पॉइंट को पूरा लेंथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। people used to communicate their views or emotions through telegrams or post, which was quite a delaying process, as it used to take around 15 to 20 days or maybe even more than a month sometimes to transfer a letter from one area to the other, and thus people faced a lot of problems। एक पॉइंट हुआ भी मेरा ये फुल फ्लेज पॉइंट जो मैंने पूरा समझाया है। ठीक है। सेकंड, communication barriers were quite common in the past years। how come? There was no face-to-face callings, there were no virtual callings, which made people travel long distances in order to talk about some confidential data or confidential conversations or have some confidential conversations। अब कॉन्फिडेंशियल वोकैब है इसमें, कन्वर्जेशन वोकैब है इसमें, बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स वोकैब है। अब मेरा ये सेकंड पॉइंट था, अब मैं इसमें थर्ड पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ। thirdly, या इन फैक्ट और फाइनली। इन फैक्ट अगर मैं यूज कर रही हूँ और परहैप्स यूज कर सकती हूँ शायद, क्योंकि मैं उस टाइम पे थी नहीं, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ परहैप्स पीपल also feared meeting each other, as they felt that once they emotionally attached a person by meeting them, it will be hard for them to get separated again। ठीक है। as their communication that has taken in place face to face would not be that easy। ठीक है। अगर ये लेंथी पॉइंट है, हम फेस टू फेस में आगे कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। The communication was even costly in the past years। a small little telegram used to cost high in bucks। okay, so the content of writing also used to be precise। ये मेरा थर्ड पॉइंट है। फॉलो अप के अंदर एक मेन पॉइंट को आप समझा के खुश हो जाते हो, मैम आंसर हो गया, हम लेंथी बोल के आ गए वहां पे। फॉलो अप के अंदर आपके वो 2 या 3 पॉइंट मांग रहा है आपसे। 1 पॉइंट फुल फ्लेज, 2 पॉइंट सेमी फ्लेज्ड, 1 पॉइंट पूरा मेन पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट, एग्जाम्पल, कंक्लूजन पूरा। ठीक है। और 2 पॉइंट्स आपके जो है वो सिंपल। जैसे पहला पॉइंट तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कम्युनिकेशन यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट एज पीपल हैड टू, इट वाज अ कॉम्प्लेक्स वन, मेन पॉइंट। सपोर्टिंग पॉइंट, पीपल हैड टू वेट फॉर 15-20 days। ठीक है। पीपल यूज्ड टू राइट टेलीग्राम्स एंड पोस्ट। सपोर्टिंग पॉइंट, विच यूज्ड टू डिले अ लॉट, ये इसका एग्जांपल है, विच यूज्ड टू डिले अ लॉट, परहैप्स अ मंथ, शायद 1 महीने से भी ज्यादा, a month plus। and conclusion, therefore people used to face a lot of problems। ये इसकी conclusion है therefore। तो ये पूरा एक main point, पूरा full fledged point है। 1 second point, there were no virtual callings। it was hard for people to meet face to face। it used to take months and years to connect with people face to face। okay। third, the communication barriers were quite strong because the cost involved in communicating or writing letters or callings was very high। ये मेरे सेमी फ्लेज्ड है, मींस पूरी तरह एक्सप्लेन पॉइंट्स नहीं है लेकिन अच्छे पॉइंट्स हैं। और पहला पॉइंट मेरा फुल फ्लेज्ड है। अगर आप इस तरीके से 2 या 3 पॉइंट्स अच्छे एक्सप्लेन करें तो आपके फॉलो अप्स आपका तब पूरा माना जाता है 6.5-7। लेकिन धीरे धीरे आपको नोट करना, असल में तो उसको इंट्रोडक्शन में टाइम कम देना चाहिए कि इंट्रोडक्शन छोटी होती है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है वो फॉलो अप्स में टाइम कम देते हैं। बच्चा यहाँ से सोच के जाता है मैम फॉलो अप्स में हम अच्छे से बोलेंगे, क्यू कार्ड में अच्छे से बोलेंगे, इंट्रो तो छोटा ही बोलेंगे। इंट्रो बल्कि आप अच्छा बोलो, क्योंकि वो आपको वहां पे पूरा टाइम देते हैं। वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन छोटी होती है बट वो आपको टाइम पूरा दे रहे हैं।
They want to listen you more because they have a new person sitting next to them now. ठीक है? They want to see what is better than the past who has gone and the upcoming who is going to come. वो एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो कंपैरिजन होंगे. कितना भी वो कह लें कि हमने तो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस जज करनी है, अगले और पिछले बंदे से वो जज कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है? So somewhere down the lane you need to make sure in the introduction you need to be very impressive but precise. ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा elaborate भी नहीं करना जैसे फॉलोअप्स में है, बट बिल्कुल टू द पॉइंट भी नहीं बोलना कि मैं सिर्फ स्टडी करता हूँ. दैट्स इट. ठीक है? So need to speak at least 2-3 lines extra or 1.5 or 2 lines extra, जिसमें आपका अगले क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो. ठीक है? And you need to ensure in follow-ups you need to speak at least 2 to 3 points. हो सकता है follow-ups में आपको लगे कि वो आपको बीच में रोकने वाला है, बस कोई बात नहीं, 2 पॉइंट्स तब तक भी आपके पूरे हो जाएंगे. ठीक है? अगर वो तीसरे में रोकेगा, 2 पॉइंट्स तो अपने अच्छे से दे दिए. जब वो ये देख रहे हैं द पर्सन कैन स्पीक एट लेंथ, दे विल गिव यू मार्क्स ऑटोमेटिकली. इज दैट क्लियर? Is that clear? So this is a small tip and trick that I have given you today. क्योंकि राइटिंग की क्लास हमारी डेली लेंथ में जाती है अच्छे से. Tomorrow either a reading class or a speaking session will be first. We will decide that. ठीक है? लेकिन रीडिंग के लिए मैं ज्यादा वरीड हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स रीडिंग में मार्क खा जाते हैं, बट रहता है. I've seen बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है. तो अब उसको हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे हमारा टेस्ट डिस्कस करके और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, इसका लॉजिक बताओ. It has to be a interactive class. कि लॉजिक क्या लगाया है. मैं वीक, अगर कोई बच्चा रीडिंग में वीक है उससे भी पूछूंगी, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, दोनों के लॉजिक को कंपेयर करेंगे. ठीक है? कि वो किस लॉजिक से सोच रहा है और मैं किस लॉजिक से सोच रही हूँ, तब फर्क पता लगेगा आपको कि अच्छा यार मेरे सोचने में फर्क है. इज दैट क्लियर? आंसर्स आपके पेपर पे ही पड़े होते हैं. आंसर्स आपके पेपर पे ही पड़े हैं. देयर इज नथिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. All the answers are within the question paper. All is your skimming, your scanning is not correct. Location या तो गलत देख रहे हो या आपका नजरिया क्वेश्चन को समझने का अलग था जिसकी वजह से आंसर अलग हो गया. There are only 2 mistakes that we make. So we'll be having a discussion. एक बच्चा जो वीक है रीडिंग में और एक जो इंटेलिजेंट है, हम दोनों का कंपेयर करेंगे यहीं पे स्क्रीन पे. Is that clear? Yes, ma'am. All right, this session is about to time out. I would wish you good luck for your preparation. मैं आज आपको एक और टेस्ट भेजूंगी, जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है. You can try. I'll send. मैम राइटिंग टास्क वही सॉरी टास्क वो होगा जो आपने क्लासरूम में प्रोवाइड किया था. क्लासरूम में बेटा कब घर वहाँ पे जो स्टाफ ने एक्चुअली आपको दिया होगा बेटा, मुझे वो याद नहीं है. मैंने तो कोई भी मैंने क्या किया, एक टॉपिक क्राइम का, एक टॉपिक एजुकेशन का, एक टॉपिक जॉब का, इस तरीके से हर एक टॉपिक का पहला टॉपिक पिक कर रही हूँ इस बुक में से, ताकि आपके हर तरह के टॉपिक कवर हो जाएं पहले मेरे से. राइटिंग नहीं रीडिंग का पूछ रही हूँ, जो आपने रीडिंग और लिसनिंग की बुकलेट्स दी थी ना. हाँ. उनका पूछ रही हूँ. रीडिंग का आपने घर पे उधर प्रोवाइड किया था, वो वाला डिस्कशन होगा. नो. जो मैं रीडिंग आपको यहाँ पे मतलब आज भेजूंगी वही कल मैं आपको न्यू डिस्कस करूंगी. कोई वो एक क्लास है. ये रीडिंग जो मैं आपको रीडिंग लिसनिंग की एक्टिविटी हर रोज भेज रही हूँ, जैसे मैंने आपको परसों एक भेजी थी, आज भी मैं आपको एक पूरा का पूरा टेस्ट भेजूंगी जिसमें रीडिंग होगी, लिसनिंग होगी एंड राइटिंग टास्क 1-2 जो भी आपको मिलता है दोनों. स्पीकिंग की यही पीडीएफ आपको आएगी. आप उसको डेली आप अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है? न्यू पीडीएफ आ गई जो अब. हाँ, न्यू पीडीएफ बेटा ग्रुप में करणवीर ने सेंड कर दी थी, आप चेक करो ग्रुप में, नहीं तो मैं रीसेंड कर दूंगी. मतलब मक्कर कितनी थी वो? आई विल रीचेक वंस. मैं आपको चेक करके फिर बताती हूँ आज. आई विल रीचेक वंस. बेटे मेरे पास जो बुक है ना उसी में से मक्कर की सारी बुक निकल के आती है जो हर बारी आती है. अगर मैं आपको वो पूरी पीडीएफ सेंड कर दूं, उसमें 170-180 टोटल है, उसी में से 50 या 70 हर बारी निकलते हैं. नवी आई नहीं है जी. नवी आई नहीं, आज होगी, कोई चक्कर नहीं. आपा अपने आप ਨੂੰ ओवे ही प्रिपेयर करना. ठीक है? कि कोई भी टॉपिक आ जाए. हाँ जी, क्यू कार्ड कोई भी टॉपिक आ जाए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਰਿतिका मैम ਨੂੰ डिस्क्राइब करो. की करोगे? करो डिस्क्रिप्शन. बेटा ਐਵੇਂ प्रिपेयर होना, ऐ नहीं कि डरी दा यार पता नहीं ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन आना ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ.
ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਡੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਬਤਾਈ, ਘੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੀ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਾਂ घड़ी बारे भी बोल सकिए। मैं आपको बोलूं ये हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क को डिस्क्राइब करना है आपने, यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब इट। आपको ऐसे प्रिपेयर होना है कि कुछ भी आ जाए। अब तो यार वो सानू कहूगा ना सामने पई हुई लाइट नु डिस्क्राइब करदा, मैं ओनू भी कर दांगा। यू शुड बी लाइक दैट। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, हैव अ नाइस डे। मैं आपको भी टास्क भेजूंगी, यूटिलाइज करो। जो बच्चे कहते हैं मैं मोबाइल से नहीं कर पाते, प्लीज ट्राई करो, मोबाइल से भी अटेम्प्ट करो। मेरे लास्ट ईयर मेरे बच्चों ने 4 बच्चे मोबाइल से ही क्लास करते थे, अपनी मोबाइल से ही उन्होंने अपनी वो आइल्स की रीडिंग अटेम्प्ट किया हर रोज। उन्होंने करने वाला बच्चा कर जाता है, ऐसी बात नहीं। आप कोशिश करो, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। क्लियर? All right, children, have a nice time. Canadian students, good night. Thank you for the late night session, Bete. And thank you for an early session. And I'm very happy that you people are attending the classes. What difficult tha, some of you were not agreeing, but you all have. That's very nice. Okay, have a nice time. Bye-bye. Bye, bye.